Good morning, students. So once again, welcome to the political science class. As you know that you already started our chapter 4, that is your social justice, and we already discussed so many important topics of this chapter. And today we are moved to our last topic of this chapter, that is the free market versus state intervention. Yesterday we discussed about how to pursue the social justice with rationally, with argument, with so many discussions, we come to know that how we can pursue the social justice. What steps can be taken by the government, by the individual, and by we can say some NGOs also to ensure this social justice. And why it is required, we thoroughly discussed everything. So directly I just moving to our today's topic, free market versus state intervention. Here the topic is related to the supporter of free market, and some are they are opposing of free market. They just wanted that the state intervention or the state should step in some circumstances to ensure the basic amenities to the very poor person. So today we will discuss these points by points, that why the people are supporting and why some are opposing it. So let's start. First of all, if we come to know what is the meaning of free market, then you can easily understand. फ्री मार्केट जहां हमने बात की थी कि बायर्स और सेलर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है. इट इज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स इज प्राइस and here the supply and demand. There is no intervention of government, there is no intervention of any agency. It is directly related to the buyers and sellers. And the major motto of this free market is to give the profit to the less advantaged people as well as not effect on the advantaged people. उनको भी profit हो और इनको भी profit. Through this we understand through some examples also. So who are the supporter of this free market? जो इस फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट इंडिविजुअल शुड बी रिमेन, दैट नो इंटरवेंशन. इट मींस गवर्नमेंट को, स्टेट को, व्हेनेवर वी जस्ट वन मोर थिंग हियर जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन. जहां पर स्टेट आता है, स्टेट इट मींस दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट, इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट मींस गवर्नमेंट जो है, उससे इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहिए? सम सपोर्टर्स दे आर आर्ग्यूमेंट है उनका, बिकॉज दे वांटेड दैट द इंडिविजुअल शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंटरवेंशन ऑफ बाय द स्टेट. बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे जस्ट वांटेड, ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारा कोई भी किसी भी जो कंज्यूमर्स हैं, दूसरी साइड में कौन होता है कंज्यूमर, इधर कौन होता है सप्लायर. तो आपस में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, ऑन व्हाट बेसिस? किसी भी तरह से है, ऑन द सोल मोटिव इज देयर प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को कमाना है, वो भी कमाएगा और वो भी कमाएगा, तो नो नीड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ स्टेट. यहाँ पर अगर कोई एजेंसी, कोई एजेंट, कोई मिडलमैन, कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करता है, तो दोनों को ही इसमें प्रॉफिट है. इसलिए वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए. फ्री मार्केट के लिए हमने ये भी बात देखी थी कि फ्री मार्केट इट इज गुड फॉर द डिसएडवांटेज पीपल ऑल्सो. That's why they argued that the state intervention should be not there to ensure the profits of both the sides. Second, very important that they just giving us the argument, they just giving us their views in support of just keeping the free market. They are just saying that if market would be free from the any intervention, it would be also beneficial for what? टोटल जो सम ऑफ द मार्केट, यानी जितना भी ट्रांजेक्शन होता है इन अ डे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन इट मीन्स जो भी व्यापार होता है, खरीदना और बेचना, उस ट्रांजेक्शन से जो भी सम, उसका टोटल हम जो सम निकालेंगे मार्केट का, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट जो होगा वो सबको मिलेगा. इट वुड बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन for all the people. They are just connected to this free market competition. यानी जहां पर एडवांटेज पीपल भी होंगे जिन्हें फायदा मिल रहा है,
और डिसएडवांटेज वर्कर्स क्लास भी होगी जिनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो टोटल ट्रांजेक्शन होगा, थिंक अबाउट इट थ्रू रैशनली। टोटल ट्रांजेक्शन हियर मीन्स, चलिए एक शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने देखा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको पता है कि जो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ब्रोकेज फिक्स होती है, जो ट्रेडिंग करते हैं ना उनको ब्रोकेज मिलती है उस चीज की, तो वो तो हो गए बीच में। फिर एक तरफ तो शेयर्स होते हैं और एक तरफ बायर्स होते हैं, और सेल कौन करेगा, वो व्यक्ति जो उस पर हमेशा नजर बनाए हुए हैं। नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन दिस। तो टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इन ऑल द पीपल हु आर कनेक्टेड टू दिस शेयर मार्केटिंग, इस शेयर मार्केट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ही इस शेयर का जो प्राइस 2 रुपए 5 रुपए जैसे भी बढ़ता है तो वो तुरंत उसको सेल कर देता है। तो सेल करने से जो बीच का व्यक्ति है, जो ब्रॉडिंग ये पूरा मार्केटिंग कर रहा है, उसको बेनिफिट होगा, उसको अपनी ब्रोकेज मिलेगी, उसको अपना शेयर का पैसा ज्यादा मिलेगा, और उस कंपनी को भी बेनिफिट होगा जो शेयर बेच रही है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चेन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उन सब लोगों को इससे बेनिफिट होगा। इस चीज को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट वी कैन से कि हर किसी को नहीं समझ में आता है, या ये कह सकते हैं कि हर किसी के लिमिट में नहीं है कि वो उसको परचेज। हम एक इसको बहुत ही पूरा मतलब इसको बहुत सिंपल से भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जिसमें हमने देखा कि आपने अगर सब्जी मंडी अगर कभी देखी है, या जहां पर होलसेल इन सब चीजों को सेल किया जाता है, वहां पर क्या सिस्टम है। अब तो ठीक है, गवर्नमेंट का रोल हर जगह है, लेकिन गवर्नमेंट का कहाँ पर रोल है अभी, गवर्नमेंट का वहां अनाज में, जहां एमएसपी वो लोग देते हैं। यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स हैं, वहां उन दोनों का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्टली वहां पर ऑप्शन होता है, बोली बोली जाती है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर उसको प्राइजेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन इन्हीं लोगों के बीच में हो रहा है, तो जो बहुत लेस एडवांटेज पीपल है, जिनको अभी तक कोई भी परचेजर नहीं मिल रहा था, बायर नहीं मिल रहा था, वहां पर उनको इतने सारे लोग मिल गए आपस में। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमने देखा कि जहां पर सपोर्टर्स ऑफ दीज दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द ट्रांजेक्शन ऑफ the buyers and supplier, in this they just believe that whatever the sum of all these transactions, it will be just distributed between all these people. तो एक इन्होंने ये बात की। अब थर्ड चीज इससे और क्या क्लियर हुई, थर्ड चीज इससे ये क्लियर हुई कि फिर तो हमें ये सोचना चाहिए कि सब जगह फ्री मार्केट पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कहीं इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर हम सारी चीजों को देख रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहाँ पर हम हमेशा एक स्ट्रगल कर रही है, हमारी गवर्नमेंट जो एक बर्डन उठा रही है इन डिसएडवांटेज पीपल के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, फिर तो हर चीज का ओपन मार्केट कर देना चाहिए, एजुकेशन का भी कर देना चाहिए, हेल्थ का भी कर देना चाहिए, फिर क्या जरूरत है गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की? ऐसा नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है इसमें ये है कि जो फ्री मार्केट कंपटीशन होता है उसके अंदर जो लोग मेरिटोरियस है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास प्रिविलेजेस हैं, वो ओपनली उसको compete कर सकते हैं, ओपनली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो लेस टैलेंटेड पीपल है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो कि लेस प्रिविलेज्ड पीपल है, जो कि बहुत पुअर है, तो उनको कैसे प्रॉपर गेन होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस कंडीशन में? इट इज वेरी अनसर्टेन। It is totally uncertain because this thing you can also consider or imagine। जहां पर आप देख रहे हैं कि अब मैंने जैसे शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया, तो मुझे ये बताइए कि कोई इलिटरेट पर्सन है, कोई लेस प्रिविलेज पर्सन है, या जो बहुत गरीब है, क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये ओपन मार्केट स्पेशली किनके लिए है? वेल्दी और प्रिविलेज के लिए। ये बात एक अलग है कि अब बिजनेस टू बिजनेस चेंजेस होते हैं, ठीक है। जहां मैंने शेयर मार्केट की करी, वहीं मैंने आपको एक सब्जी मंडी का उदाहरण दिया। तो वहां जो हमने एग्जांपल लिया, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये जेंट्री भी आ सकती है, वर्कर्स की, लेबर्स की जेंट्री भी आ सकती है, तो वहां पर ये चीज हम कंसिडर कर सकते हैं। नॉट एवरीवेयर कि ये चीजें सेम जो है। अब हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चलो एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ की। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो एक पुअर व्यक्ति है, जो पुअर पर्सन है, who is just suffering from any diseases and the person would it is very we can say
that thing is very clear that he would be admitted in a government hospital, वहीं पर जाएगा जहां उसका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन एक मुझे बताइए कि जो एक प्रिविलेज क्लास पर्सन है वो क्यों जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल? कोविड को देख लीजिए अभी आप उसके अंदर आप जहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कर रहे। अब सेलिब्रिटीज जिनको जिनको हुआ तो वो सारे सेलिब्रिटीज कहाँ पर एडमिट हुए? सबके सब प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए। और यही चीज आम लोगों से ये नहीं है कि नहीं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भेजा जा सकता। और सेकेंड थिंग ये है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर। क्या इन चीजों को ओपन फ्री मार्केट होगा तो क्या इन डिसएडवांटेज पीपल को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट्स वाई कि सम जो इसके अगेंस्ट तो नहीं कहूंगी, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर स्टेपिंग होना जरूरी है। वो स्टेपिंग क्यों होना चाहिए? बेसिक एमिनिटीज जो है, बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज है, उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट का स्टेपिंग होना जरूरी है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है ना। और भाई हमारी ऐसी जैसे हम कहते हैं कि जो डेली यूज की हमारी चीजें हैं, अगर ये अफोर्डेबल नहीं थी, अगर उनके प्राइजेस सही नहीं हुए, अगर ओपन मार्केट में ऐसा रहा कि उनकी प्राइजेस क्वालिटी, मान लिया वो क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, मान लिया कि चॉइसेस बहुत देते हैं, लेकिन वन मोर थिंग इज दैट इज वेरी एसेंशियल टू बी कंसिडर्ड, दैट व्हाट इज दैट कॉस्ट। उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि आम व्यक्ति उसको नहीं ले सकता। तो स्टेट का इंटरफेरेंस क्यों जरूरी है? स्टेट का स्टेपिंग होना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ द टू एंश्योर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, कि हेल्थ और एजुकेशन है वो सबको मिले, क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव, दोनों चीजें। क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मीन्स कि जितने लोग हैं, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन ए कंट्री, दे शुड बी ऑल्सो ऑल द पीपल एक्सेस टू दीज facilities like education, health, and another. So that's why qualitative is very also necessary. Sometimes that the people is some person is very we can say very poor and suffering from a very acute disease, that is we can say that incurable disease, and sometimes it requires that more facilitated hospital and all these requirements. So who will arrange all the things? The only private owners, only private companies, they can arrange because of their investment is very high. On the other hand, the person is dying because of the lack of these facilities. So it is very necessary for the government to step in and all these कि private जो companies हैं जो ये facilities दे रही हैं उसका cost वो इतना रखें कि अफोर्डेबल हो। हर व्यक्ति तो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो इतना कॉस्ट भी कम नहीं करेंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास, एक हाई मिडिल क्लास, एक लो मिडिल क्लास जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से ये कोशिश करती है गवर्नमेंट कि इन सबको ये चीजें मिले। आज हम वी आर बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास एंड व्हाट वी वांट दैट वी वांट कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हो, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हो। आज हमें कहीं प्रॉब्लम है या हमें कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है तो वी जस्ट ट्राई टू कि हम भी हाई क्वालिटी या क्वालिटी मेंटेन जो चीज होती है उसको हम लेना चाहते हैं। हम जो ऐसी पुअर क्वालिटी की चीजें, हमें भी मालूम है कि आज एक बार हमने उस चीज में इन्वेस्ट किया तो वो चीज हमारे आगे तक चलेगी। ये अंडरस्टैंडिंग सब में आ गई है। तो गवर्नमेंट का स्टेप इन होना क्यों जरूरी है यहाँ पर? टू इंश्योर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, उसके लिए जरूरी है। बट वन मोर थिंग इज दैट कि उसका कॉस्ट ऐसा हो दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल बाय द पीपल एंड द पीपल शुड ऑल्सो encourage to use all these things or use all these systems. And market as well as how it can control the market, that through the market, the government try to inspire and encourage the market to produce the basic useful things for these people, like I say that education, health and other facilities. तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। किस तरह से कि इधर से तो प्राइवेट कंपनीज के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, उनको भी हो सकता है गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को अपनी तरफ से कुछ प्रॉफिट देती है, कुछ शेयर देती है उस चीज का। उससे क्या होगा कि वो अपनी कीमतों में अपनी प्राइजेस जो होते हैं उससे उनको थोड़ा कम रखती है ताकि पीपल पे बर्डन हो। आपने जैसे आपने देखा होगा कि सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट कई चीजों पे सब्सिडी देती है, उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट वो बर्डन अपने पे लेती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होती है लेकिन
हमें जो चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे किसान है ना, फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है फॉर फार्मिंग टूल, जो बायोकेमिकल जो चीजें होती है उनके लिए, फॉर इरिगेशन पर्पजेज के लिए। वो सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि किसानों पर उस चीज की बर्डन ना पड़े रेट की, और वो बर्डन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो कॉस्ट, मेजर जो कॉस्ट है वो खुद पे करती है, और माइनर कॉस्ट जो है वो फार्मर्स से लेती है। तो थ्रू ऑल दीज वेज कि गवर्नमेंट क्या करती है कि क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, और इन प्राइवेट कंपनीज को भी क्या करती है, वो इस तरह से सपोर्ट करती है। तो इन दिस वे वी कम टू नो कि स्टेट इंटरवेंशन और स्टेट स्टेपिंग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टेट का जो है उसमें यूँ कहा जाए कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, मार्केट के अंदर प्राइसेस वगैरह हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए, ये सारी चीजें जरूरी। लेकिन सबसे जरूरी चीज और क्या है? अब ओवरऑल अगर हम देखें, अगर जहां पर फ्री मार्केट कंपटीशन है, हमने सिर्फ ये सजेशन दिया है कि स्टेट को स्टेप इन क्यों करना चाहिए, टू इंश्योर फॉर सोशल जस्टिस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, फॉर द assurance of social justice the state should step in. But another thing, what is the fact? अब फैक्ट क्या है? आपने देखा कि इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई नेटवर्क की, वोडाफोन आ गया, जियो, रिलायंस, बीएसएनएल, बहुत सारी। अब आप मुझे बताइए कितने घरों में बेसिक फोन है? शायद बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। और उस सिचुएशन में आप देखिए कि ये एक ओपन फ्री मार्केट कंपटीशन हो चुका है नेटवर्क कंपनीज का। आप देखिए नए नए जो हैं प्लान्स आते हैं हमारे पास, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वो फैसिलिटी कोई भी हमें देता है, तो उतने ज्यादा उस लोग उससे जुड़ते हैं। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? गवर्नमेंट को कोई रोल नहीं है। ये ओपन फ्री मार्केट है सप्लायर और कंज्यूमर के बीच, जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। नो नीड ऑफ एनी इंटरफेरेंस देयर। So in this way, we come to know in sometimes the government, what is the fact? The state only formulate the laws. वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। फ्रेमवर्क इट मीन्स कि फ्रेमवर्क मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर कंपटीशन है तो वो ये देख रही है कि टू एंश्योर फ्री मार्केट कंपटीशन की वही कंपटीशन होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना इंश्योर करती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है टू इंश्योर द फ्री मार्केट कंपटीशन। ओवरऑल अगर स्टेट का हम देखा जाए कि ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस सिचुएशन में आप मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है? नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल है, ये जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, इनके थ्रू जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और बंद होने की उस तरह। इसका रीजन है कि प्राइवेट जो कंपनीज है ये हमें ज्यादा बेनिफिट दे रही है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फ्री मार्केट। तो हमें जितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हम उस चीज को, कि एवरी पर्सन, मैं कहती हूँ हर व्यक्ति जो है इस चीज को यूज कर रहा है। That's why they are supporting and some are not supporting of all these reasons. आगे हम और बात करते हैं कि जहां पर हम गवर्नमेंट की कुछ मतलब यूँ कहा जाए लिमिटेड इंटरफेरेंस चाहते हैं। इंटरफेरेंस इन द सेंस कि हमें मालूम है कि सबको एक साथ में बराबर सबको फायदा नहीं मिल सकता। ऐसी कंडीशन में उन पीपल का रिकॉग्निशन जरूरी है जो डिसएडवांटेज है। ऐसी कंडीशन में जो उन लोगों का रिकॉग्निशन जरूरी है जिसमें नीडी पीपल है, वहां पर गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है। गवर्नमेंट इंश्योर क्या करती है? तो जस्ट गिव देम द बेसिक एमिनिटीज, basic facilities. This is very important to recognize. That's why we already discussed one paragraph, one topic in this. Recognition is very necessary. Who are the special needy people? Physically handicapped, poor people, unhealthy people. These are another people are also. These are in categorized in special need people, where the state should step in to give the insurance of less privileged people. So in this way, we come to know that where the state interference is required, where is not. Some supporters. Now we move to the next year. That some supporters in this, they believe, and it is also a fact,
इस चीज फैक्ट को हम प्रूव करेंगे कैसे कि ओपन फ्री मार्केट इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू द जेंडर. It is not considered to the gender, like the gender means here men, women, all are allowed to compete on equal level. This is a very good feature, I should say. बहुत बड़ा feature है. It is a great feature. There the no gender bias is there. यहाँ पर सिर्फ किस चीज को कंसर्न किया जा रहा है? टैलेंट को. कंसर्निंग ऑफ टैलेंट, स्किल, ब्रिलियंट. अब आप मुझे बताइए कि जहां पर हम इंडिया में जेंडर की बात करते हैं, सब चीजें हमने अपने चैप्टर्स में डिस्कस कर ली है. यहाँ पर एक फीमेल को वीक जेंडर माना जाता है. तो लोगों के एक कस्टम बना हुआ है, जहां पर हमने ना राइट्स वाला चैप्टर किया था, इक्वालिटी का. तो पीपल दे बिलीव बिकॉज ऑफ देयर कस्टम कि ये एक वीक जेंडर है, इसलिए इनको किसी भी तरह का राइट नहीं मिलना चाहिए और किसी भी डिसीजन में इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट जेंडर है, ये अपने लिए खुद कुछ नहीं करते. ऐसी सोच एक कस्टम बनी आ रही है. इसीलिए हमारे देश में जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे. नाउ दे आर एक्सेस टू ऑल एवरीवेयर. In each and every field the females they are choosing as their career. आपने देखा ही है, ये देने को एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है. तो जहां पर हम फ्री मार्केट कंपटीशन की बात कर रहे हैं वहां पर भी किसी तरह का जेंडर कंसर्निंग नहीं है. वहां पर आप, अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि आप कोई भी कंपटीशन की बात कर लीजिए जहां पर हम सप्लायर और उसके, तो ये थोड़ी ना कंसिडर किया जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है. उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, इसे थोड़ी ना कंसीडर किया जाए. कंसीडर किसको किया जा रहा है कि उनमें कितना टैलेंट है, क्या वो इस मार्केट को, क्या इसके साथ वो कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. इट डिपेंड्स. अब मैंने अभी आपको नेटवर्क कंपनी का एग्जांपल दिया. अब जरूरी नहीं है कि उसको कोई मेल ही चला रहा हो उस कंपनी को. अब आपने देखा है कि कई सीईओ वगैरह होते हैं, बैंक में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वो फीमेल्स होती है. तो पूरा का पूरा जो रेगुलेशंस है, पूरा का पूरा उसको ऑफिस का है या इंचार्ज है, रूल्स रेगुलेशन सब उनके हाथ में होता है. तो यहाँ पर जो मैटर कर रहा है वो क्या कर रहा है? टैलेंट मैटर कर रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि फ्री मार्केट एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है. वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो मेरिटोरियस है वो सर्वाइव करेगा और जो लेस टैलेंटेड है या नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा. अब यहाँ जो कुछ नहीं मिलेगा वहां पर स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो जो कंपटीशन है सामने दो हेल्दी पीपल के बीच में आ गया है कि वो परचेज कर सकते हैं और वो सेल कर सकते हैं. और गरीब आदमी अगर परचेज कर सकता है तो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. और अगर दूसरी हम बात करते हैं कि लेस जो टैलेंटेड की हमने बात की कि कंपटीशन ऐसा है जहां पर जो प्रिविलेज्ड पीपल एंड एज वेल एज लेस प्रिविलेज पीपल, लेस प्रिविलेज में भी अगर टैलेंटेड है, ये मत सोचना कि गरीब व्यक्ति है तो उसके बच्चे जो है लेस टैलेंटेड होते हैं. नहीं, यहाँ पर हम सोशल जस्टिस की फिर बात कर रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करें. लेस टैलेंटेड इट मीन्स कि जो किसी भी तरह से सर्वाइव ना कर सके. इट मीन्स रिसोर्सेज नहीं हो उनके पास, किसी भी तरह का रिसोर्सेज नहीं हो. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे का जन्म कैसी फैमिली में होता है जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत पुअर है. तो वो बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी फैमिली में उसका जन्म हुआ, उस बच्चे से पूछ के तो नहीं हुआ. उसी सिचुएशन में उसके पास रिसोर्सेज नहीं, उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको केयर नहीं मिली, उसको गुड एजुकेशन नहीं मिली, इसलिए वो क्या है? डिप्राइव्ड है. ठीक है. अब वो जो रीजन है, अगर अब गवर्नमेंट इसमें स्टेप इन करती है तो उसको सोशल जस्टिस देने के लिए दैट इज एक्सेप्टेबल. बट ऑन द अदर हैंड वेयर द फ्री मार्केट इज देयर, जहां पर जो लेस टैलेंटेड पीपल की हम बात कर रहे हैं, वो लेस टैलेंटेड कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि ये लेस प्रिविलेज लेस टैलेंटेड क्यों है. टैलेंट जो चीज है दिस इज द वी कैन से अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन विद गॉड ग्रेस. तो गरीब व्यक्ति है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन उसके फिर भी जो चिल्ड्रन है दे आर टैलेंटेड. इफ द सोशल जस्टिस इज हियर that the government should provide equal opportunity
opportunities to all the people, all these children to access the education, they will prove themselves. They will prove themselves because they are also talented. In spite of that, they are living in poor conditions. That's why you hear sometimes that the results, whenever they declared, like IIT, JEE and others, कि किसान के बच्चे ने देखो टॉप कर दिया है, वो टॉपर हो गया है, उसका कंपटीशन में RS है, IAS है. What it means to all to see कि यहाँ पर ये सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फ्री मार्केट जहाँ पर बात कर रहे हैं वहां हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं. और प्राइवेट कंपनीज का सोल मोटिव होता है प्रॉफिट लेना. डिसएडवांटेज पीपल की ये लोग बात करते हैं कि उनको भी प्रॉफिट मिलता है, तो वो अलग अलग लेवल के हिसाब से होता है कि वो क्या किस चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हालांकि एक कहता क्या है फ्री मार्केट की जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर स्टेट इंटरफेयर ना करे. So that's why we once again focus to all these things. Next जो चीज आती है, the supporters of free market they also believe they give us many choice. बिल्कुल ठीक है. आप आज कोई भी अपने लिए क्लॉथ लेने जाएं, कोई जीन्स लेने जाएं, तो आपको कितनी ब्रांड की कंपनीज की आपको जीन्सेस आज मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. और color, design, brand, these are all available easily to you. ठीक है. choices है, variety of things are there. You just want to, if you want to any purchase according to your choice, everything will be available there. Because they, here the private companies, their directly contact is with consumer. Consumer क्या चाहता है, यहाँ पर स्टेट का रोल नहीं है. मार्केट की कैसी डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई होता है. वापस वही चीज आ रही है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होता है. कंज्यूमर क्या चाहता है, किस वैरायटी को चाहता है, उसी का प्रोडक्शन वो करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं. आप खाने से लेकर पहनने और अपनी लग्जरी चीजों को अगर हम देखें जो डेली यूज में मॉर्निंग टू इवनिंग हम यूज कर रहे हैं घर पे भी, अपने एजुकेशन की बात कर लीजिए और कुछ हो. जस्ट कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एजुकेशन. आप मुझे बताइए कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो क्या नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को यूं कहा जाए अट्रैक्ट करने के लिए, जस्ट गिविंग गुड एजुकेशन ऑल्सो. नॉट ओनली ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट infrastructure. It is also very matter to all the parents and children also कि full facilitated होना चाहिए, well furnished होना चाहिए. ये सारी चीजें मैटर करती है. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दैट कि स्कूल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एजुकेशन अच्छी नहीं है तो कौन रहेगा. मैटर क्या कर रही है, एजुकेशन. तो जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, है ना, और प्राइवेट जो कंपनीज जो काम कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स की मैंने इसलिए एग्जांपल दिया बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड वेरी इट इज क्लोज टू यू एंड इट इज ऑल्सो क्लोज टू मी दैट आई एम टीचिंग हियर. तो अगर गुड एजुकेशन नहीं है, इफ दे आर नॉट इम्पार्टिंग गुड एजुकेशन, व्हाई यू विल गेट एडमिशन इन ऑल दीस स्कूल्स? ओनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर? नो. But one more thing is here concerning in that these private schools, they are just giving you good education and all the facilities. In exchange of that, what will be they? They require, or what is there, we can say, it's unke average mein. In all these giving these average, you have to pay good for them. बहुत अच्छा आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए. और अब इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर देते हैं, गवर्नमेंट जहां सोशल जस्टिस लाने, अब स्टेप इन कहाँ करना है, बहुत बढ़िया एग्जांपल आ रहा है. अब स्टेप इन कैसे कर रही है गवर्नमेंट? RTE कल भी बताया था, राइट टू एजुकेशन. जहां पर डिसएडवांटेज बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत खराब है. सभी जानते हैं आज जितने अच्छी ऑनलाइन क्लासेस प्राइवेट स्कूल्स में चल रही है, स्पेशली इन लाल पब्लिक स्कूल, मुझे बताइए कहाँ चल रही है. दे आर जस्ट गिविंग यू गुड एफर्ट. जब पूरा एफर्ट जो है वहाँ सब तरह से लगा रहे हैं हम लोग. उसका रीजन क्या है? दैट इज द रीजन कि हम जो भी दें 100% दे बच्चों को, जो भी एजुकेशन दे वो प्रॉपर दे. तो आज इस स्कूल में या दूसरे जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट का स्टेप इन हो रहा है. यहाँ ओपन फ्री मार्केट के साथ देखो एग्जाम्पल आ गया,
स्टेप इन कैसे हो रहा है, RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसके थ्रू कुछ परसेंट फिक्स किया गया है उन बच्चों का जिसे हर प्राइवेट स्कूल को एडमिशन देना होगा, और उसकी बर्डन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि कहाँ हम बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल को हम क्या करें, मार्केट वो प्रोड्यूस करें जिससे कि इन लोगों की क्वालिटी मेंटेन रहे, एजुकेशन और हेल्थ की बात। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। वेयर द स्टेट स्टेप इन दिस, फ्री मार्केट में नहीं करना है, लेकिन स्टेप इन कहाँ करना पड़ा, टू गिव द सोशल जस्टिस टू ऑल दीज डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पीपल आल्सो, कि जिनके बच्चे खुद वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके उनको ये इंश्योर किया। और हम आपके साथ में हम ये भी कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ चॉइसेस आर देयर, चॉइसेस हैं आपके पास, वेराइटीज ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू कैन चूज देम, बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट it would be affordable by you, आप अफोर्ड कर सकें, उसकी कॉस्ट है। अगर उसकी कॉस्ट ही ज्यादा है, चाहे वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, चाहे आपको कितनी चॉइसेस दे रहा है, आप उस चीज को परचेज नहीं कर सकते। तो समटाइम इट फील्स कि ये शायद प्रिविलेज लोगों के लिए फ्री मार्केट, ये शायद जो वेल्दी हैं, जो ऑलरेडी प्रिविलेज है, उन लोगों को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए है फ्री मार्केट। तो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट एंड अपोजिशन ऑफ फ्री मार्केट, एंड दे आर सपोर्टर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। चॉइसेस दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। वन मोर सपोर्टर इज दैट कि चॉइसेस के साथ क्वालिटी मेंटेन रखें। क्वालिटी मेंटेन कैसे रखते हैं, एग्जांपल इज वेरी सिंपल हियर, वंस अगेन वी कैन टेक कि जहां एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है और जहां एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑफ जस्ट गेटिंग द एजुकेशन इन बोथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। और आप ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है, बट बर्डन बहुत है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या कहा, दिस इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी। लेस प्रिविलेज पीपल का जो आंकड़ा है भारत में, वो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट अपने से बर्डन लेकर उन लोगों को इम्पार्ट करेगी, एजुकेशन देने की, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें कि फ्री मार्केट कंपटीशन में जहाँ क्वालिटी एंड चॉइसेस की बात करते हैं, वी आर एग्री विद दिस, ठीक है, वो पूरा बहुत बढ़िया दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बट वन थिंग दैट इज कॉस्ट, वो कॉस्ट क्या करती है, द कॉस्ट पुट देम आउट टू एक्सेस ऑल दीज फैसिलिटीज। पैसा ही आप नहीं भर सकते तो किस तरह से आप उनको पे करेंगे। तो यहीं पर आर्ग्यूमेंट आता है कि जो बेसिक एमिनिटीज जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो कॉस्ट नहीं पे कर सकते लोग, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेप इन करना चाहिए टू एंश्योर सोशल जस्टिस। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट दोनों तरफ से आ रहे हैं। देखो हमारी जो डेमोक्रेसी है वहां पर सबसे बड़ी बात ये है कि जितना ज्यादा हम इस चीज को डिस्कशन करेंगे, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आएंगे, उसका आउटकम उसका बेस्ट आएगा। जहां हम फ्री मार्केट का सपोर्ट कर रहे हैं वहीं हम अपोज भी कर रहे हैं, जहां हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाह रहे हैं और नहीं भी जा रहे हैं। इन सारे डिस्कशन से समझ में हमें क्या आ रहा है, हमें इन द लास्ट समझ में यही आ रहा है कि जो लेस प्रिविलेज पीपल हैं वो इंडिया में उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, पुअर लोगों की सबसे ज्यादा है। जो प्रिविलेज है वो तो वैसे ही फैसिलिटीज सारी एंजॉय कर रहे हैं। ये मार्केट होना भी जरूरी है, फ्री मार्केट होना भी जरूरी है, स्टैंडर्ड वाइज लोगों के लिए, एमएनसीज को अपने देश में लाने के लिए, एक अपनी रेपो बनाने के लिए वर्ल्ड में, सारी चीजें जरूरी है। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दीज डाउनट्रोडन पीपल। That's why the government intervention is very necessary to ensure the basic needs, plus maintaining some quality also. तो ये डिस्कशन जो है एक लंबा डिस्कशन है और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये चीजें और भी आएंगी जिससे हम रैशनली समझेंगे कि सोशल जस्टिस कैसे लाया जाए। तो ओवरऑल आज ये आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ। हमने सोशल जस्टिस को समझा, व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस। फिर हमने इसके 3 एलिमेंट्स देखे जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स को थॉरली डिस्कस किया। इक्वालिटी वाले में कि भाई इक्वल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, स्पेशल नीड्स, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स पीपल, इक्वल ट्रीटमेंट, इन सारे एलिमेंट प्रिंसिपल्स के बाद हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखा।
उसके बाद हमने रॉल्स की थ्योरी पढ़ी, वेल ऑफ इग्नोरेंस, फिर हमने कल परसुइंग जस्टिस को देखा और आज हमने फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन को कंप्लीट किया। तो ओवरऑल आज ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर थॉरली। अगर फिर भी आपको डाउट है, मैंने आपके इसके नोट्स भी कंप्लीटली सेंड कर दिए हैं। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट ऑल्सो, आई जस्ट वांट टू डिस्कस असाइनमेंट विद यू। तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ इस चीज के लिए कि मैं आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस करना चाहती हूँ रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वेरी स्मॉल क्वेश्चन और बट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस दैट ऑल शुड बी पार्टिसिपेटेड इन दिस। नहीं तो वो असाइनमेंट जो है वो मतलब नहीं रहेगा मेरी इतनी मेहनत का। तो दैट्स वाई वेरी नेसेसरी टू ऑल ऑफ यू। और अब उससे आज के चैप्टर से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। Any doubt is there? If you, this time if you don't have, okay. Yes, Rahul. मैम इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है ना, हाँ बिल्कुल है। तो फिर मैम जो पुअर पीपल की जो डिमांड्स होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। पुअर पीपल की तरफ से आने वाली डिमांड्स। बट जो हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो तो ज्यादातर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर हाँ क्लास की डिमांड्स फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर मैम उनकी डिमांड कम है, उनकी डिमांड लॉजिक, जैसे अपन ने देखा पॉवर्टी ज्यादा है तो उनकी डिमांड कम होनी चाहिए, फिर भी उनकी डिमांड इतनी ज्यादा कैसे है? भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम इंडिया को, पॉपुलेशन को हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिवाइड करें, है ना, हमने कहा मिडिल, अपर मिडिल, है ना, ऊपर से हमने रिच को हमने देखा, फिर पुअर को देखा, ठीक है। हमने कहा कि पुअर लोगों की डिमांड उनकी ज्यादा है क्योंकि पुअर की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, लेकिन उनकी डिमांड क्या है, उनकी सिर्फ बेसिक डिमांड होती है, ठीक है। उन बेसिक डिमांड्स को पूरा करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्या है, उसकी कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं रखती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब आपने कहा कि जो रिच पीपल है या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास पीपल है, उनकी डिमांड्स जो होती है वो कम है, फिर भी प्राइवेट, देखो प्राइवेट कंपनी इन लोगों को अट्रैक्ट करती है। प्राइवेट कंपनी तो हर देश के अंदर आपको पता है कि हर प्रोपोर्शन में लोग मिलेंगे। तो फ्री मार्केट पॉलिसी, या हम ये कहा जाए कि प्राइवेट जो कंपनीज है उनका होना भी जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि अगर ये लोग, अगर प्राइवेट कंपनीज अगर ना होती तो सारी बर्डन किसके ऊपर आती, गवर्नमेंट पर आती। गवर्नमेंट को जो है हाई क्लास के लिए भी करना पड़ता है, लो क्लास के लिए भी करना पड़ता है और पुअर क्लास के लिए तो करना पड़ ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर ये नहीं करेगी, गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं, गवर्नमेंट का रोल जो एमएनसीज है उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का होना इसलिए जरूरी है। ये प्राइवेट कंपनीज ही तो एमएनसीज है जो यहाँ पर आकर एक ओपन फ्री मार्केट करती है और हमारे देश को फॉरेन करेंसी दिलाती है। तो इनकी डिमांड्स को पूरा करना जरूरी है। दूसरी तरफ जो पुअर लोगों की डिमांड है, गवर्नमेंट अपने लेवल के साथ साथ इन प्राइवेट कंपनीज के साथ भी, मैंने आपको जैसे सब्सिडी का एग्जाम्पल दिया, उनके